Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Students, today we will start proof of Thales theorem. We are already done with Thales theorem, or it's also called basic proportionality theorem, or simply you say BPT. Now let's prove this theorem. Let me take a triangle. Let us say I have a triangle A, B, C. Let's consider a triangle A, B, C. And take a line, let us say DE, parallel to one of the sides of this triangle, and that is BC. Now DE is parallel to BC in this triangle A, B and C. If I write given, now what is given? A triangle ABC in which DE is parallel to BC. So in this triangle A, B, C, DE is parallel to BC. Now remember, what is Thales theorem? Thales theorem क्या कहती है? Thales theorem कहती है अगर आपके पास एक लाइन सेगमेंट है जो या लाइन एक है जो दो साइड्स को दो डिफरेंट जगह इंटरसेक्ट कर रही है. मान लो DE यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट है जो AB साइड को D पे इंटरसेक्ट कर रही है और AC साइड को E पे इंटरसेक्ट कर रही है. ये DE लाइन सेगमेंट पैरेलल है BC के. Thales theorem says if DE is parallel to BC, then जो ये दो रिमेनिंग साइड्स है जहां पे दो डिफरेंट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट किया इस लाइन ने इन दो साइड्स को, तो वो दो साइड्स सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड होंगे. सेम प्रोपोर्शन हमने पिछले वीडियो में सीखा था. सेम प्रोपोर्शन मींस अब AD बाय DB बराबर होगा AE बाय EC, और यू कैन से AD बाय AB is equal to AE by AC, or you can say AB by AD is equal to AC by AE. जैसा साइड्स का प्रोपोर्शन आप यहाँ से ले, जैसा साइड्स का रेशो आप यहाँ से लेंगे वैसा ही साइड्स का रेशो यहाँ से लेंगे, तो वो दोनों रेशोज बराबर होंगे. AD by DB बराबर होगा AE by EC, or you can say AD by AB will be equal to AE by AC. So on and so forth. जो सारे रिजल्ट्स हमने पिछले वीडियो में देख लिए थे. You can check that. उसको आप थोड़ा रिवाइज कर सकते हो ताकि आपको बात पूरी क्लियर हो जाए. Having said that, अब देखिए, so we have what's given? A triangle ABC in which DE is parallel to BC. This is all you have to prove. What we are going to prove? You are going to prove that these sides are cut out in the same proportion by this DE. That means you need to prove AD divided by DB is equal to AE
divided by EC. AD divided by DB is equal to AE divided by EC. आपने ये प्रूव किया, जो जो बाकी इसके कॉरलरीज है वो उसके बाद ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएंगे बाय एडिंग 1 टू बोथ साइड्स, उसमें कोई मसला है नहीं. So let's focus on this objective, that AD by DB is equal to AE by EC. Let's have a bit of construction. थोड़ी सी construction कर लेते हैं. What I'll do, see, let me draw a perpendicular from this point. Let me draw DM perpendicular to AC. DM perpendicular to AC. And let's say EN perpendicular to AB, and also join this join DC and BE. Draw DM, and EN perpendiculars to AC and AB respectively. That means DM is perpendicular to AC and EN is perpendicular to AB. Also join DC and BE. Also join DC and BE. ये दिमाग में रखिए, हमें प्रूव करना है AD by DB is equal to AE by EC. ये प्रूव करना है और ये देखे, इसको हमने कंस्ट्रक्ट किया. So that means अब आपके पास ये और ये है जिससे आपको इसको प्रूव करना है. And I'll tell you one thing, that this Thales theorem is a very important theorem, one of the most important theorems of your textbook for class 10th. And ये almost हर एग्जाम में आपको करने को आती है, तो इंशाल्लाह pay a good focus over it. So let's have the proof. Let me take triangle ADE. Consider this triangle ADE. You know, since area of triangle, you know the formula for finding out area of triangle? Yes, that is half of base times corresponding altitude. Base times corresponding altitude. You know this formula? Area of triangle is equal to 1 by 2 times base times corresponding altitude. Therefore, area of triangle, now if I find area of triangle ADE, that will be equal to, yes, 1 by 2. Let me take base as AD. So I have 1 by 2 times AD. आप बेस कौन सी लेंगे वो आपकी मर्जी है. जब भी आप ट्राइंगल को लेंगे, आपके पास मान लो एक ट्राइंगल है, आपको इसका एरिया निकालना है. बेस, अगर ट्राइंगल का नाम ABC है, बेस कोई भी ले सकते हैं, चाहे आप AB लो, चाहे आप BC लो, चाहे आप AC लो. तीनों साइड्स में से आप कोई भी एज बेस ट्रीट कर सकते हैं. बट
वंस यू सिलेक्टेड अ बेस, जो उस बेस पे ऑल्टीट्यूड आ रहा है, ऑल्टीट्यूड बोलेंगे उसी को हम कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड। मान लीजिए एक ऑल्टीट्यूड इस पे है, ऑल्टीट्यूड मींस अ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स टू द बेस। बीसी आपकी बेस, अपोजिट वर्टेक्स इज ए से ऑल्टीट्यूड आ गया, मान लो एडी, AC बेस तो B से ऑल्टीट्यूड आएगा, AB बेस तो C से ऑल्टीट्यूड आएगा। अगर आपने बेस BC सेलेक्ट की है तो ऑल्टीट्यूड AD होगा। अगर आपने बेस AC सेलेक्ट की है तो ऑल्टीट्यूड BE होगा। अगर आपने बेस AB सेलेक्ट की है तो ऑल्टीट्यूड CF होगा। दिस इज व्हाट वी मीन बाय कॉरस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड, वो ऑल्टीट्यूड जो बेस पे आएगा। ठीक हो गया? अच्छा जी। नाउ अगर आपका ट्रायंगल कुछ ऐसा होगा जिसको हम ऑब्ट्यूज एंगुलर ट्रायंगल कहते हैं, जिसमें मान लो एक एंगल आपका ऑब्ट्यूज एंगल होगा मोर देन 90 डिग्री। यहां पे थोड़ा ध्यान से देखेंगे। अगर ट्रायंगल का नाम है ए, अगर ट्रायंगल का नाम ए बी सी है, ए बी सी, तो ए सी पे जो ऑल्टीट्यूड आएगा वो कहां से आएगा? वो बी से आएगा, बिकॉज ऑल्टीट्यूड आएगा परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स। सो बी से आपका ऑल्टीट्यूड आएगा जस्ट लाइक दिस। अगर अब बी सी पे ऑल्टीट्यूड आना है, बेस हमने अगर ट्रीट की ए सी, तो BD आपका ऑल्टीट्यूड होगा फॉर AC। नाउ द प्रॉब्लम इज, अगर BC को आपने बेस सिलेक्ट किया, BC आपकी बेस, ऑल्टीट्यूड कहां से आएगा? ऑल्टीट्यूड आएगा अपोजिट वर्टेक्स से, दैट इज A। तो A से आना है ऑल्टीट्यूड को किस पे? B पे। नाउ इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली, A से जब ऑल्टीट्यूड आएगा तो नहीं आ सकता है 90 डिग्री। Are you getting my point? BC आपकी बेस है, I repeat, BC आपकी बेस है, ऑल्टीट्यूड तो आना है अपोजिट वर्टेक्स से, तो वो है A से ऑल्टीट्यूड आएगा BC पे। It cannot happen unless you extend this। तो इसको एक्सटेंड करेंगे इस BC को, तो जो ऑल्टीट्यूड इस पे गिरेगा वो ऑल्टीट्यूड इस BC का ही होगा। Why? Because what is actually altitude? Altitude is the height of the triangle. वो हाइट हम देख रहे हैं, BC आपका ग्राउंड है, आपको हाइट देखनी है। इस पॉइंट से इस ग्राउंड तक क्या हाइट होगी? जब भी आप हाइट देखते हो तो आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस को देखते हो। इस पॉइंट से इस BC आपका ग्राउंड है, तो इस पॉइंट से हाइट क्या होगी? हाइट तो वही होगी ना जो यहां पे परपेंडिकुलर बनेगा, हाइट यहां पे भी वही होगी। तो पता चला BC का अपोजिट वर्टेक्स जो होगा, ऑल्टीट्यूड हमेशा वहीं से आएगा, क्योंकि आपको ट्रायंगल की हाइट देखनी है। तो BC अगर आपका ग्राउंड है, ट्रीट इट लाइक अ रियल लाइफ एग्जांपल, BC आपका ग्राउंड है, यहां से मान लो पानी है, ये सड़क है BC, दिस इज अ रोड, और ये पानी है। अब यहां पे एक ऑब्जेक्ट है, कोई मान लो कोई बर्ड यहां पे है, या कोई भी एक ऑब्जेक्ट ऊपर है। इस ऑब्जेक्ट से आपको ग्राउंड तक हाइट बोलनी, या बोलना है आपको ये जो ऑब्जेक्ट है ये कितनी हाइट पे है फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से कितनी ऊंचाई पे है। तो आप क्या देखोगे? आप यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसको यहां से एक्सटेंड करके देखोगे, यहां पानी में ही वो हाइट आएगी, लेकिन वो हाइट इसी ग्राउंड की होगी। बात समझ आ रही है? गुड। नाउ हैविंग सेड दैट, जब हम ये दोनों चीजें सीखते हैं, इसी तरीके से अब AB साइड है, AB साइड का ऑल्टीट्यूड कहां से आएगा? पॉइंट C से। पॉइंट C से आना है AB साइड का ऑल्टीट्यूड। नाउ आई विल डू द सेम थिंग, ये आपका ऑब्जेक्ट, AB आपका ग्राउंड, AB इज द ग्राउंड एंड दिस पॉइंट इज एन ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट इस ग्राउंड से कितनी हाइट पे है? यू डू सिंपली इसको एक्सटेंड कीजिए, और यहां से दिस पॉइंट, नाउ यू कैन इजीली से that this point C is at this much height from the ground. Ground आपका AB, तो
ये तो पता चला BC का कॉरस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड दिस वन, AB का कॉरस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड दिस, और AC का कॉरस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड BC। तो ऑल्टीट्यूड ट्राइंगल के अंदर से भी ड्रॉ हो सकता है, ट्राइंगल के बाहर से भी हो सकता है फॉर द सेम बेस। अच्छा जी, ये दो बातें समझकर एक बात तो हमें समझ आ गई, वो ये है जब मैं ट्राइंगल ADE लेता हूं, व्हेन आई कंसीडर ट्राइंगल ADE, इफ आई यूज बेस AD, नाउ ADE में AD बेस पे ऑल्टीट्यूड आएगा फ्रॉम अपोजिट वर्टेक्स, सो वो E है। सो E से कौन सा ऑल्टीट्यूड आ रहा है, EN ओवर AD। AD पे ऑल्टीट्यूड EN आ रहा है, ठीक है। देखिए, सो आई राइट वन बाई टू टाइम्स AD times altitude, corresponding altitude, that is EN, because मैंने कंसिडर की है बेस AD, तो AD पे जो ऑल्टीट्यूड आएगा वो होगा EN, ठीक है जी। ओके, देन and area of triangle, now similarly let's find area of triangle BDE। पहले हमने ADE लिया, पहले ADE को क्यों सिलेक्ट किया हमने, बिकॉज आई वांट AD मुझे ADE में मिलेगा, देन आई वांट DB मुझे BDE ट्राइंगल में मिलेगा। सो BDE ट्राइंगल 1/2 टाइम्स बेस लेंगे यही BD और DB, यू कैन से DB टाइम्स। देखिए यहां पे बात को समझेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल पॉइंट अबाउट इन दिस थ्योरम। देखिए BD आपकी बेस, ट्राइंगल को पहले कंसिडर कीजिए BDE, ये देख ले, इसको मैं थोड़ा बाहर निकालता हूं, ये B, ये D, ये E, ये आपका ट्राइंगल है BDE। जैसे अभी हमने यहां पे सीखा, अगर BD बेस है, जो कि मैं ले रहा हूं DB बेस, DB इज अ बेस, ऑल्टीट्यूड कहां से आना है, ऑल्टीट्यूड आना है फ्रॉम अपोजिट वर्टेक्स, एंड दैट इज व्हाट E पॉइंट कितनी हाइट पे है फ्रॉम BD ग्राउंड, BD ग्राउंड है, हाइट क्या है, कितनी डिस्टेंस पे है E, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी E से BD तक। तो आप परपेंडिकुलर कब डालेंगे, परपेंडिकुलर यहां से आएगा, उसके लिए इसको एक्सटेंड होना पड़ेगा, ये जब एक्सटेंड होगा तो ये आपका परपेंडिकुलर बनेगा, यही है ना जो हमने अभी सीखा। BD पे ऑल्टीट्यूड गिरना है तो आएगा ऑल्टीट्यूड BD पे अपोजिट वर्टेक्स से, एंड दैट इज E से जो ऑल्टीट्यूड आएगा वो आपके BD का ऑल्टीट्यूड होगा, तो उसके लिए हमने D को यहां से एक्सटेंड किया, तो वो E और दिस पॉइंट मान लो ये N है, इसको मान लो मैंने A तक एक्सटेंड किया, तो EN ऑल्टीट्यूड होगा BD का। अब यहां पे आएगी BD इज योर बेस, ऑल्टीट्यूड आएगा E से, बिकॉज ट्राइंगल है BDE ट्राइंगल है BDE, ऑल्टीट्यूड आएगा E से ऑल्टीट्यूड आएगा, तो परपेंडिकुलर इसको एक्सटेंड करेंगे D को, मान लो D को यहां तक A तक एक्सटेंड किया, तो EN, सो EN इज द कॉरस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड फॉर DB। सेम ऑल्टीट्यूड, AD का भी EN ऑल्टीट्यूड और DB का भी EN ऑल्टीट्यूड। होप यू गॉट दैट, उम्मीद है बात समझ आ गई होगी। अब देखिए, सो BDE का एरिया निकालने के लिए आई हैव 1/2 टाइम्स DB,
then times corresponding altitude, and that's En. Okay. Now if I divide this and this, then area of triangle ADE divided by area of triangle BDE, area of triangle ADE divided by area of triangle BDE is equal to this divided by this is equal to this divided by this. 1 by 2 times AD times En divided by 1 by 2 times dB times En. ठीक है जी? Now here I can cancel 1 by 2 and 1 by 2. I can cancel En and En as well. Therefore what I got? Area of triangle ADE divided by area of triangle BDE is equal to AD divided by DB. Now treat this as equation first. Area of, so far our result is area of triangle ADE divided by area of triangle BDE is equal to AD divided by DB. ठीक हो गया? You can pause the video and you can make a note. देखिए जी, अब ये आपका रिजल्ट आ गया, इसको मैं ऐसे रखता हूँ. Let me rub this as well. आप याद रखेंगे प्रूव में क्या करना है. AD by DB is equal to AE by EC. Now let us see. Again, or also, area of triangle ADE also area of triangle ADE. ADE का area अगर हम फिर से निकालते हैं, you can also find it by this. Area of triangle ADE is equal to 1 by 2 times. Now I'll change my base. अब मैं base लेता हूँ AE. 1 by 2 times AE times. अब आपको पता होगा. Now you can easily do. अब इसका altitude क्या आएगा? AE का DM. AE का altitude अब DM. ठीक हो गया? अच्छा जी. And area of triangle, let me use this triangle, CED, or you can say CED, yes, CED. CED का area क्या निकलेगा? 1 by 2 times base लेंगे EC times same reason, EC का altitude D से ही आएगा तो DM, EC का भी altitude होगा times DM. ठीक हो गया? Then again इन दो का डिवीजन कीजिए. Get the ratio of this divided by this. So ratio of this area of triangle ADE to area of triangle CED.
area of triangle ADE divided by area of triangle CED is equal to this divided by this. So you have 1 by 2 times AE times DM divided by 1 by 2 times EC times DM. Here you can cancel out DM and 1 by 2 cancel hoga. Then what did you get? What do you get here now? Area of, which implies that area of triangle ADE divided by area of triangle CED is equal to AE divided by EC. There's one more point. आपको याद होगा, you have read in your previous class standard 9th, आपने सीखा triangles on the same base and between the same parallels are equal in area. If you have any doubts, you can check my other video for that of class 9th in the playlist. उसमें आप वो वीडियो देख सकते हैं that area that two triangles on the same base and between the same parallels are equal in area. मतलब अगर आपके पास दो triangles हैं just like this, अगर ये दो triangle और ये line line L AB के पैरेलल, अगर line L AB के पैरेलल है तो ABC ट्राइंगल ABD ट्राइंगल की सेम बेस है और ये बिटवीन द सेम पैरेलल्स है. बिटवीन द सेम पैरेलल्स का मतलब है ये जो रिमेनिंग वर्टिसेस है AB के बगैर C और D वो दोनों उस पैरेलल लाइन पे है. तो इन दो ट्राइंगल्स का एरिया इक्वल होगा. इफ यू हैव एनी डाउट्स और अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो आप दूसरा वीडियो देख सकते हैं क्लास 9th triangles on the same base and between the same parallels. Inshallah that by that your doubts will be cleared inshallah, if you do have any. Having said that, so अब यहाँ पे देखिए consider triangle BDE. BDE triangle को देखिए BDE और CED triangle को देखिए, दोनों triangle की same base है and that is DE. DE is a common base of both these triangles. And both these triangles lie between the same parallels because DE is parallel to BC. That's already given up. Given को check, given portion को check कीजिए. DE is parallel to BC. So you can say, however, triangle BDE and triangle CED. Triangle BDE and triangle CED share a common base. Share a common base DE. Share a common base DE and lie between the same parallels as DE is parallel to BC. कैसे पता चला हमें कि ये same parallels है? Because it's given that DE is parallel to BC. In that case, what did you get? You got that area of this triangle is equal to area of this triangle, which implies that area of triangle BDE is equal to area of triangle CED. तो इससे आपको पता चला area of triangle BDE बराबर होगा area of triangle CED. अच्छा जी, इसको यहाँ पे आप कुछ नाम रखिए. Let's say this is equation second. Therefore, second becomes
देखिए, अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई बराबर सी ई डी के है तो इक्वेशन सेकंड को मैं चेंज कर सकता हूँ. मैं लिख सकता हूँ ए डी ई के बदले ए डी, सी ई डी के बदले मैं बी डी ई लिखता हूँ. सी ई डी यहाँ है, इक्वेशन सेकंड में सी ई डी है. सी ई डी की जगह एरिया ऑफ सी ई डी, आई कैन रिप्लेस एरिया ऑफ सी ई डी बाई एरिया ऑफ बी डी ई. कैन आई? Yes, I can definitely do that. So therefore, equation second becomes area of triangle ADE divided by area of triangle CED. I'm replacing CED by BDE. BDE is equal to AE by EC. ऐसा ही लिखिए वापस. Now let us call this as equation third. इसका नाम हम इक्वेशन 3 रखते हैं. ठीक है जी. Now देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन थर्ड को कंसिडर कीजिए. You see, in first and third, left hand side of both the equations is exactly the same. See, exactly the same. That means right hand side must be same. As per the Euclidean postulate, it says that if two equal things are equal to the same thing, then the resultants are also equal. दो चीजें equal हैं, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर. आप देखेंगे ये दो असल में ये this by this and this by this is actually equal to the same thing. तो वो आपस में भी बराबर होंगे. So from first and second, लास्ट में आप ये लिखेंगे from first and third. From first and third we get AE by EC is equal to AD by DB. And that's it. Alhamdulillah, we are done with the proof of Thales' theorem. Hence, proved. Quadratic demonstrander. Make a note. So I hope that you have understood this efficiently. So take care. See you next time with some new stuff inshallah. Till then, take care and do remember me in your supplications. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.